Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's daily news analysis where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's look at the news headlines for today. So we do not have very important news in today's newspaper. Most of the news is a repetition from yesterday's newspaper only. However, I thought let's add some more information which was not covered yesterday. For example, yesterday it was reported that probably there was a helicopter crash and in which the Iran president might have died. However, now it has been confirmed in today's newspaper that not just Iran president but the foreign minister of Iran has also died. So let's look at some of the factual information which can be asked in your exam. So for example, the first is regarding the country of Iran. I hope you know the currency of Iran is what? So I'm not going to tell you the currency of Iran. It only starts with R. Try to fill the full form of it. Okay, next, who is the supreme leader? So unlike India has a president who is the head of the state. They also have a president, and it was the president who has died. However, there is another office known as the Office of Supreme Leader, and it is headed by the Ayatollah Ali Khamenei. And the person who has died, Ibrahim Raisi, was supposed to become the next Ayatollah or the next Supreme Leader of Iran. However, now because of his death, probably the second son of Ayatollah Ali Khamenei is going to become the next Supreme Leader. Next, who has been appointed as the current interim president? So the current vice president. So till yesterday, he was the vice president of Iran, Mohammad Mukhbar. Now he has become the interim president of Iran. Next is the country of Azerbaijan. Why I have covered this country? Because this Iranian president was actually coming on a helicopter from the country of Azerbaijan only. So Azerbaijan is a landlocked country, so it does not have any access to the open seas. However, there is a Caspian Sea which is on the east of Azerbaijan. And the capital of Azerbaijan is Baku, and its currency is Manat. And again, you have to reply in the chat box what is the currency of Iran. Next, who is the president? The president is Ilham Aliyev. Ilham Aliyev is the current president. So even the name of this president can be asked. And finally, one important region, Nagorno-Karabakh region. So Nagorno-Karabakh region was in news in the last year, and the main reason was that there was a war going on between Azerbaijan and Armenia. There was a war going on between Azerbaijan and Armenia, and because of this particular region was in news. And Nagorno-Karabakh earlier was in the custody of Armenia. However, last year, because of the second Nagorno-Karabakh war, this area has now been transferred to Azerbaijan. So these are some of the important factual information from the first news. Let's move to the next news now. Moving on to the next news headlines. So basically this news is regarding the extradition appeal of WikiLeaks founder Assange, which is pending in the UK court, and he's being extradited to US. So let's understand what is WikiLeaks. So as the name suggests, WikiLeaks is an organization, it's a media organization, and it is famous for publishing of leaked documents. And why this news has come up? Because Julian Assange, who is the founder, has been charged with espionage. What is espionage? It basically means spying for a particular country. So he's been charged for spying for other countries, specifically the enemies of US, and that's why he has been charged in the US for espionage. So let's understand certain facts about the WikiLeaks organization. So this particular organization was founded by Julian Assange, who is the main man of the hour right now, and right now the UK court has allowed an appeal for extradition to US, which means the UK court is giving time to Julian Assange to appeal against extradition to US. Okay, so it was founded in the year 2006. Why it was in news? Because it has exposed war crimes of US and others. Basically, when the US had started a war against terrorism in Afghanistan and Iran. So यूएस एंड उसके फ्रेंड्स ने अफगानिस्तान के अंदर आपके अटैक किया था टू रिमूव द तालिबान इन द फर्स्ट टाइम, एंड ऑल्सो द 2003 इन्वेजन ऑफ इराक, नॉट ईरान, सॉरी, इन्वेजन ऑफ इराक. सो जो उस टाइम में वॉर क्राइम्स हुए थे बाय द यूएस एंड इट्स फ्रेंडली कंट्रीज, इट वाज एक्सपोज्ड बाय द विकीलीक्स थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट्स. नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो पब्लिश द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूएस एंड अदर्स, जिनको अपन डिप्लोमैटिक केबल्स बोलते हैं.
diplomatic cables are those particular news items or those papers which are supposed to be exchanged only between the diplomats. However, WikiLeaks somehow got a hand of these documents and actually published it to the world. And because of these diplomatic cables only, we were able to find out the war crime which was committed by US and other countries in these countries. Moreover, many US secrets and many secret dealings of USA with many other organization, even banned organization, came to the fore. So because of this, US actually charged him under US of Espionage Act. Now, what is extradition? Let's understand extradition. So let's understand the context of this case. So Julian Assange, he is an Australian person. He is an Australian person, and at the time of this allegation, he was there in the United Kingdom. So he was there in United Kingdom, and because he was in UK, so it was the UK court. It was the UK court and police which arrested him on certain charges. And when the case was going on in UK, the United States applied to UK authorities. It applied to UK authorities to extradite this person to US. So let's understand what does extradition means. So extradition basically means when a crime accused is transferred, crime accused or even convict also. Let's say a court has convicted it. For example, let's say Julian Assange would have been asked to, there was a request for extradition of Julian Assange to India, and let's say Indian court has convicted him for some crime or etc. In that case, that he would be a convict in the Indian courts, and there can be a request from India to a second country where he can be asked to return to face justice. So एक सिंपल टर्म्स में बोले एक्सट्रेडिशन क्या होता है? इट्स अ रिक्वेस्ट ओनली. ऐसा नहीं है कि आपको सेंड करना ही पड़ेगा. इट्स अ रिक्वेस्ट by one jurisdiction. It's a request by one jurisdiction to transfer that person from one jurisdiction to another to face the criminal justice system. तो अगर किसी पर्सन ने इंडिया में क्राइम करा है और वो यहां से भाग गया है, फॉर एग्जांपल विजय माल्या का केस भी आपका सेम इसी टाइप पे एक्सट्रेडिशन का ही केस है उनका भी. सो अगर वो यहां पे कोई क्राइम करके, फाइनेंशियल क्राइम करके भी या नॉर्मल क्राइम करके अगर भागा है और लेट्स से कि वो यूके में बैठा हुआ है, तो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट यूके कि प्लीज सेंड दिस पर्सन टू इंडिया बिकॉज ही हैज कमिटेड क्राइम इन इंडिया. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रेडिशन. सो इंडिया के अंदर कौन सा लॉ उससे डील करता है? सो देयर इज अ 1962 एक्ट नोन एज इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट जो बेसिकली इससे डील करता है. और ये मेनली क्या कहता है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, देन इंडिया उस कंट्री को एंड दैट फॉरेन कंट्री इंडिया को अपने क्रिमिनल्स को, अपने फ्यूजिटिव्स को सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड. सो फॉर एग्जांपल, व्हेन इज एक्सट्रेडिशन नॉट अलाउड, कि एक्सट्रेडिशन कब अलाउ नहीं होता है? तो इसमें सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी. सो डुअल क्रिमिनलिटी को अपन समझते हैं. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी? इट बेसिकली मींस, फॉर एग्जांपल, कि अगर इंडिया के अंदर मर्डर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम एंड इन यूके, फॉर एग्जांपल, इन यूके मर्डर इज नॉट अ crime, then the principle of dual criminality is not followed. So what is principle of dual criminality? कि अगर हम किसी पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कराना चाहते हैं इन इंडिया फॉर मर्डर, then that crime should also be recognized as murder in the UK also. Okay, so dual criminality क्या बोलता है कि दोनों कंट्रीज के अंदर it should have been a crime, then only you can be extradited to the second country. Second क्या है? फॉर सर्टेन पनिशमेंट. सो इट इज पॉसिबल कि जो आप ट्रीटी साइन कर रहे हो उसके अंदर में आप कुछ रेगुलेशंस फॉलो करो. एग्जांपल के लिए कि इंडिया के अंदर आज भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है. हाउएवर इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्वीडन, वहां पे देयर इज नो कैपिटल पनिशमेंट और नो डेथ पेनल्टी. तो अगर किसी पर्सन को आप एक्स्ट्राडाइट करा भी लेते हो इंडिया में, तो वहां पे आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि फॉर दैट क्राइम व्हिच ही हैज कमिटेड, ऑल्दो डेथ पेनल्टी इज वन ऑफ द पॉसिबल पनिशमेंट व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड, बट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बीन एक्स्ट्राडिटेड, नो डेथ पेनल्टी वुड बी प्रोवाइडेड. सो ऐसा पॉसिबल भी होता है, ऑल्दो हो सकता है इसने बहुत ही हीनियस क्राइम कराओ, स्टिल इट इज अप टू द कोर्ट टू नॉट अवॉर्ड डेथ पेनल्टी. तो इस टाइप से भी आपका इस केस में हो सकता है.
एंड फाइनली absence ऑफ अ ट्रीटी। एंड इट इज पॉसिबल कि ऐसा नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सट्रेडिशन एक रिक्वेस्ट ही होती है, तो आपकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है। हाउएवर जो कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करती हैं, सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करती हैं, एंड यहां पे हम बात भी कर रहे हैं किसी क्रिमिनल की, तो उस केसेस के अंदर यूजुअली कंट्रीज या तो ट्रीटी के अंदर या अदरवाइज भी आपकी एक्सट्रेडिशन को अलाउ कर देती है। हाउएवर अगर देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ट्रीटी, अगर दो कंट्रीज के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सेकंड कंट्री है या जो फर्स्ट कंट्री है वो उस एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे, एंड इट वोंट बी एनी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अगर दोनों कंट्रीज के बीच में साइन है एंड अगर एक कंट्री उसे फॉलो नहीं करती है, सो देयर कैन बी अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और आप आईसीजे के अंदर जाके उसको चैलेंज कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सो अब इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज हेडलाइंस पे आ जाते हैं, बिकॉज देयर आर एक्चुअली बहुत ही कम ज्यादा न्यूज आई हैं आपके आज के हिंदू न्यूज़पेपर में। सो आई थॉट कि लेट्स लुक एट सर्टेन गुड टॉपिक्स जो थोड़ा डिटेल में अपन डिस्कस कर सकते हैं। सो सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ऑन द एक्सप्लेन पेज देयर इज अ पर्टिकुलर आर्टिकल रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ आर्कटिक पार्लियामेंट बीइंग हेल्ड इन कोची। सो ये सुनने में ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि एंटार्क्टिका है जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, एंड उसकी मीटिंग हो रही है, पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही है इन कोची के अंदर। So let's understand certain facts which can come in your exam. So first is what meeting is being held in India. So it is also known as the 46th Antarctic Parliament, and actual में इसका नाम क्या है? Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM, Antarctica Treaty Consultative Meeting। ATCM stands for Antarctica Treaty Consultative Meeting, जिसको आप एंटार्क्टिका पार्लियामेंट भी कहते हो, एंड इट इज अ 46th एडिशन, यानी इससे पहले 45 मीटिंग्स हो चुकी हैं, एंड 46 मीटिंग कहां पे हो रही है? इट इज हैपनिंग इन कोची इन इंडिया। बट you should remember that it is not for the first time कि आपकी ADCM मीटिंग is happening in India। फर्स्ट टाइम इंडिया में कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी इन द ईयर 2007। सो रिमेंबर कि दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम हुई थी, एंड करंटली इस साल कोची के अंदर होने वाली है एंटार्क्टिका पार्लियामेंट के ऊपर में। एंड इसको इंडिया के अंदर होस्ट कौन करने वाला है? सो आपकी एक बॉडी है नोन एज NCPOR। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर for polar oceanic research in Goa। So गोवा के अंदर आपका NCPOR है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियनिक रिसर्च, जो आपकी एक बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर एक बॉडी है ये NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियनिक रिसर्च, जो इसको होस्ट करने वाला है, यानी मेन ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट को हेल्ड करेगी, दैट इज NCPOR गोवा। थर्ड इज ऑब्वियसली बिकॉज ये एंटार्क्टिका ट्रीटी की कंसल्टेटिव मीटिंग है, सो लेट्स अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स अबाउट एंटार्क्टिका ट्रीटी। So originally it was signed by 12 countries, and it was signed in the year 1959। 1959 में साइन हुई थी, ओरिजिनली 12 कंट्री ने साइन किया था। एज ऑफ नाउ देयर आर 56 कंट्री, यानी कितने मेंबर्स हैं एंटार्क्टिका ट्रीटी के? 56 मेंबर्स हैं करंटली एंटार्क्टिका ट्रीटी के। इज इंडिया मेंबर? सो यस, इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ द एंटार्क्टिका ट्रीटी, साइंड इट इन द ईयर 1983। Let's look at what are the main provisions of the Antarctica Treaty। So पहला है कि Antarctica is to be used for only peaceful purposes, यानी कि आप यहां पे कोई मिलिट्री डील नहीं कर सकते हो। You cannot do no military deal, ना ही आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो which is related to defense या मिलिट्री। आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, कोई भी इसका यूज ऐसे नहीं करोगे जो आपका बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस से होता है, यानी कोई भी कंट्री इसके अंदर मिलिट्री डील साइन नहीं करेगी। एंड नॉट जस्ट इंडिया और यूएस, इस टाइप की कंट्री नहीं, सब टाइप की कंट्रीज हो गई आपकी, लाइक चाइना, आपकी इसके अलावा आपका USSR जो था, अब जो रशिया बन चुका है, ऑल ऑफ दीज आर सिग्नेटरीज, तो सब इसको फॉलो करते हैं। बेसिकली ये क्या डिक्लेयर करता है एंटार्क्टिका को? इट डिक्लेयर्स एंटार्क्टिका टू बी नो मैन्स लैंड, यानी एज ऑफ नाउ कुछ कंट्रीज हैं जो क्लेम करते हैं एंटार्क्टिका के डिफरेंट पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल एक कंट्री आपकी अर्जेंटीना, तो जैसे जो आप यहां पे एक पार्ट देख रहे हो जो निकलता जा रहा है, यहीं पे आपका अर्जेंटीना स्टार्ट हो जाता है। सो अर्जेंटीना क्लेम करता है कि ये वाला जो पोर्शन है इट इज पार्ट ऑफ अर्जेंटीना ओनली, हाउएवर इट इज कंसिडर्ड एज नो मैन्स लैंड। तो एंटार्क्टिका पर किसी का भी सॉवरेनिटी नहीं है, किसी का भी रूल नहीं है। ऑल कंट्रीज हैव इक्वल शेयर ऑफ एंटार्क्टिका, जिसको हम बोल सकते हैं नो मैन्स लैंड, और इट्स अ कॉमन रिसोर्स।
ये कॉमन रिसोर्स की तरह ही है ह्यूमन काइंड के, मैन काइंड के। सो पहली चीज तो हो जाती है कि ओनली इट इज टू बी यूज फॉर पीसफुल पर्पस। सेकेंड इज कि यू कैन यूज एंटार्क्टिका फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन फॉर रिसर्च पर्पसेज। हाउएवर इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि जो भी आपके आउटकम्स निकलते हैं, जो भी आपने वहां पे लर्निंग करी है, ऑल ऑफ दिस शुड बी शेयर्ड ऑल्सो। सो आपको वो सब शेयर भी करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंटार्क्टिका को आप किसी भी न्यूक्लियर यूज के लिए नहीं यूज कर सकते हो। ना तो यहां पे आप न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करोगे, नो वेपन टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ना ही इस जगह पे आप वेस्ट डिस्पोजल करोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको आप यहां डिस्पोज कर दो, तो दोनों ही यहां पे अलाउड नहीं है। सो दिस इज योर एंटार्क्टिका ट्रीटी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंडिया के रिसर्च स्टेशन कौन कौन से हैं। सो इंडिया के, इफ यू विल लुक एट दिस मैप आल्सो, यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर 3 एंटार्क्टिका रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया। सो एक बार उनके नाम लिख लेते हैं, पर गो थ्रू कर लेते हैं उन तीनों को। सो पहला तो था आपका दक्षिण गंगोत्री। सो सबसे पहला जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, दैट इज नेम्ड दक्षिण गंगोत्री, जो 1981 के अंदर फाउंड हुआ था और इट वाज ऑपरेशनल टिल 1990। सो 10 इयर्स की इसकी लाइफ थी। उसके बाद बिकॉज ऑफ द सीवियर वेदर सिचुएशन देयर, इट इज नॉट इन यूज एनी मोर। तो दक्षिण गंगोत्री पहले यूज में था, अब नहीं है। सेकेंड जो आपका आया, दैट्स नेम मैत्री। सेकेंड वाला जो रिसर्च स्टेशन है 1989 के अंदर ओपन किया था इसको, एंड इट इज स्टिल ऑपरेशनल। इट इज स्टिल ऑपरेशनल। एंड थर्ड जो आपने लॉन्च करा था, इट इज नेम्ड योर भारती। थर्ड है भारती, जो बहुत रिसेंटली इन द ईयर 2012, सो अभी इसके 11 साल 12 साल ही कंप्लीट हुए हैं भारती के, और इट इज ऑल्सो ऑपरेशन। एंड इसके बाद यू शुड नो कि इंडिया एक और लॉन्च करने वाला है वेरी सुन, मैत्री सेकंड को लॉन्च करेगा एंटार्क्टिका में, बट इट वुड बी लॉन्चिंग बाय द ईयर 2029-30। सो 2029 से पहले का टारगेट है कि हम मैत्री सेकंड को भी लॉन्च कर ले। एंड प्रेजेंटली ये 2 ऑपरेशनल है, और जो पहला था इट्स नेम इज दक्षिण गंगोत्री। सो ये 3 आपके हैं। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्कटिक रिसर्च सेंटर? सो इफ यू नो द आंसर, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आर्कटिक के अंदर जो रिसर्च स्टेशन है इंडिया का, उसका नाम क्या है। एंटार्क्टिका के 3 और एक जो आगे जाके हम बनाने वाले हैं उसका तो हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा एक और जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, इट इज द एंटार्क्टिका ट्रीटी। सो जो एक और इसके अंदर नया डेवलपमेंट है, दैट इज द एंटार्क्टिका एक्ट 2022। इंडिया ने 2022 के अंदर एंटार्क्टिका एक्ट को बनाया था। एंड इसके अंदर बेसिकली आपने क्या करा है, जो एंटार्क्टिका ट्रीटी है उसको इंडिया के अंदर एप्लीकेबल कर दिया है। सो एंटार्क्टिका ट्रीटी जो आपने 83 में साइन कर ली थी, हाउएवर देयर वाज नो इंडियन लॉ टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। आई होप यू नो दिस। इंटरनेशनल लॉ का एक प्रिंसिपल होता है कि अगर इंडिया के अंदर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए इंडिया के अंदर लोकल लॉ होना चाहिए। सो देयर शुड बी अ लोकल लॉ। जब लोकल लॉ बन जाता है, उसके बाद वो ट्रीटी आपके इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो जाती है। सो बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट वी हैव मेड एंटार्क्टिका ट्रीटी आल्सो एप्लीकेबल ऑन इंडियन सिटीजन एज वेल एज द इंडियन गवर्नमेंट. So these are some of the important facts from this particular topic. It's a very good topic. Possibly a question can come. Moving on to the next one. So from the Indian Express again. So there is a news regarding that Venezuela, which is one of the country in South America, has lost its last glacier. So Venezuela जो South America के अंदर है, because it's on a height, वहां पे भी आपको glaciers मिल जाते हैं, और वहां पे जो उसका last glacier बचा था वो भी अब खत्म हो गया है. And this is an article why this matters, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझने के लिए. So let's look at certain facts regarding the state of Venezuela और country of Venezuela. So वेनेजुएला की कैपिटल का नाम है कैरेकस, प्रेसिडेंट का नाम है निकोलस मदुरो. एंड अगेन इफ यू नो द नेम ऑफ द करेंसी, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए द करेंसी ऑफ वेनेजुएला. व्हाट इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला? सेकेंड, most important fact, once first country, it might probably become the first country to lose all its glaciers. So as of now अभी तक कहीं और का समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं और भी लॉस हो सकता है ग्लेशियर्स का. However इस साल 2024 के अंदर probably Venezuela would become the first country जिसके पास जितने भी ग्लेशियर्स थे सबके सब मेल्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. So थोड़े से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अपन वेनेजुएला की ग्लेशियर्स के बारे में. ओरिजिनली वेनेजुएला के अंदर 6 ग्लेशियर्स थे. इट वाज अ वेरी स्मॉल कंट्री, तो 6 ग्लेशियर्स थे, और इसने 5 ग्लेशियर्स बाय द ईयर 2011 तक खत्म हो गए थे. सिर्फ एक ग्लेशियर बचा था जिसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर.
जो लास्ट ग्लेशियर बचा था हम्बोल्ट ग्लेशियर्स, और 2024 में ये भी अब इस क्लासिफिकेशन है या ये भी अब खत्म हो चुका है। अब हम इसे ग्लेशियर नहीं बोलेंगे, अब हम इसे क्लासिफाई करेंगे एज एन आइस फील्ड। सो ग्लेशियर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती होगी जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते होंगे किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को एज अ ग्लेशियर। हाउएवर बिकॉज अब इसके अंदर उतना आइस कंटेंट नहीं है, इसकी साइज इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए अब हम ग्लेशियर की जगह से आइस फील्ड बोलेंगे एंड द ग्लेशियर नेम इज हम्बोल्ट ग्लेशियर। एंड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि बाय द ईयर 2030 साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ वेनेजुएला के नहीं 2/3 वर्ल्ड के ग्लेशियर्स हैं वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, वो सारे मेल्ट हो जाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ग्लेशियर। सो ग्लेशियर को कई लोग एक स्लो आइस रिवर भी बोलते हैं, स्लो मूविंग आइस रिवर। It is sometimes considered as slow moving ice river. It's not like a mountain, but it's like a river जो flow करती रहती है। So what is the definition of glacier? So it's a persistent body of dense ice that is constantly moving under its own weight and gravity. So ग्लेशियर को कैसे डिफाइन करा गया साइंटिफिकली कि ये एक बॉडी ऑफ डेंस आइस है, एक बड़ा सा बहुत ही बड़ा एरिया है जो सिर्फ डेंस आइस का है और ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है। इट्स नॉट स्टिक एट वन प्लेस, ये मूव करता रहता है अंडर इट्स ओन वेट एंड ग्रेविटी। सो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ जाता है एंड इसका वेट भी इतना ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो इट फ्लोट्स इन फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू क्लासिफाई एज अ ग्लेशियर? हमने इस ग्लेशियर को, हम्बोल्ट ग्लेशियर को आइस फील्ड क्यों क्लासिफाई करा है? बिकॉज द मिनिमम एरिया ऑफ अ ग्लेशियर शुड बी 10 हेक्टेयर्स। सो एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू विल फाइंड आउट कि मिनिमम एरिया जो होता है ग्लेशियर का वो 10 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्लेशियर 10 हेक्टेयर से कम हो जाता है देन इट इज क्लासिफाइड एज अ आइस फील्ड और समथिंग एल्स, बट इट वोंट बी क्लासिफाइड एज ग्लेशियर। हाउएवर इन दिस पर्टिकुलर केस जो यहां पे 10 हेक्टेयर नहीं 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया था। The area occupied this particular glacier was less than 2 hectares, so that's why it has been converted, it has been classified now as a ice field only and not as a glacier. Okay, why are they disappearing? So what is the reason provided in the article also? So first is your climate change. So climate change is basically global warming भी बोलते हैं, and because warming increase हो रही है, globally warming increase हो रही है, there is a one status which says कि 1.1 डिग्री सेल्सियस तो इंक्रीज हो ही चुका है from 1800. So for example अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर in 1800 was 13 डिग्री सेल्सियस, now it is 14.1 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, करंटली अभी 14.1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही आपका अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना इंक्रीज हुआ है। सो ग्लेशियर्स में जो पहले 13 डिग्री के अंदर सर्वाइव कर रहा था, अब नाउ इट इज टू सर्वाइव इन 14.1 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेकेंड इज एल नीनो। एल नीनो भी एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है जिसके अंदर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, चिली के अबाउंड में और वेनेजुएला भी वहीं पड़ता है। और जब भी एल नीनो वाला सिचुएशन होता है तब भी वो ग्लोबल वार्मिंग को हेल्प करता है, इट हेल्प्स द ग्लोबल वार्मिंग। सो लास्ट ईयर जो 2023 का ईयर था, क्लाइमेट चेंज तो एक कंसिस्टेंट फिनोमिना अपन देख रहे हैं। 2023 वाज आल्सो द हॉटेस्ट ईयर, इट वाज आल्सो द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, आज तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है एज पर WMO। सो क्लाइमेट चेंज भी रिस्पॉन्सिबल था, उसके अलावा एल नीनो, बिकॉज जो आपका सी सरफेस टेम्परेचर था इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, सी सरफेस टेम्परेचर ये भी नॉर्मल से ज्यादा था। सो मेनी साइंटिस्ट बिलीव कि एल नीनो एंड क्लाइमेट चेंज दोनों ने मिलके आर द टू मेन रीजंस व्हाई हम्बोल्ट आपका जो ग्लेशियर है ये अब आज खत्म हो चुका है। Next, what would be the consequences? तो glaciers melting and not just of a Humboldt glacier but any glaciers. If most of the glaciers would melt, what would be the consequences? तो पहला तो होगा rise in sea level. Obviously जो glaciers melt होंगे फाइनली उनका सारा वाटर जाके सी के अंदर जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस सी लेवल इज गोइंग टू राइज, जिसका मतलब जो आपके सी के आसपास वाली जो आपकी कोस्टल सिटीज हैं दे माइट प्रोबब्ली गेट अंडर वाटर ऑल्सो। आइलैंड सिटीज हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल कॉज हार्म टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो फ्लोरा एंड फौना एक पर्टिकुलर वाटर टेम्परेचर में सर्वाइवेबिलिटी के लिए रहती है, बिकॉज उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ग्लेशियर्स के मेल्टिंग होने से उसके नीचे के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड उससे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम उस पर डिपेंडेंट है उसको भी हार्म मिलता है। सो दीज वुड बी सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉस ऑफ ग्लेशियर। Now let's look at one interesting article from the Indian Express again. So Supreme Court has decided to revisit the 1995 order on suing doctors in consumer court. Here's why. So let's understand the background of this particular case. So ये जो केस है ये केस है आपका बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस DK गांधी।
बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डीके गांधी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो लॉयर्स होते हैं दीज आर प्रोफेशनल्स, और जो इंटेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और इससे पहले आपकी 1986 में ही था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो इसकी मेन इंटेंशन है इट इज टू सेव द कंज्यूमर्स फ्रॉम अनएथिकल बिजनेस एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो प्रोफेशनल्स है लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, क्या वो बिजनेस या ट्रेड कर रहे हैं, आर दे प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ प्रोफेशनल। सो इस केस के अंदर उन्होंने क्या बोला कि लॉयर्स जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर उनके सर्विस के अंदर कुछ डेफिशिएंसी होती है, इट डज नॉट मीन कि वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग अनएथिकल बिजनेस और ट्रेड, दे आर जस्ट प्रोफेशनल्स। सो प्रोबेबली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 वो प्रोफेशनल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए अपन एक बार बैकग्राउंड में गो थ्रू कर लेते हैं। सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, ये अभी 2019 में आया है, इससे पहले 1986 में था आपका जो ओरिजिनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इट वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1986 एंड 2019 के एक्ट ने इसको टोटली रिप्लेस कर दिया, इट हैज कम अप विद अ न्यू एक्ट। अब मेन पर्पस क्या होता है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का? सो इट इज प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि कोई अनफेयर ट्रेड या बिजनेस प्रैक्टिसेस तो नहीं करता है, और फाइनली एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करना है सिस्टम को, जिससे अगर कोई अनफेयर ट्रेड और बिजनेस प्रैक्टिस करता है तो उसके अंदर उसको एक डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन मिल पाए। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्वेश्चन क्या आ रहा था आपके लिए, इस बेसिकली यहां से अपने क्वेश्चंस का बन रहा है अपने लिए कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स, योर लॉयर्स, योर सी एक्सेट्रा, क्या वो बिजनेस और ट्रेड कर रहे हैं? सो पहला जो केस आया था दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। इट्स अ वेरी फेमस केस ऑफ 1995 एंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लायबल माना गया। इसमें क्या बोला गया कि जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इफ देयर इज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, अगर उनकी सर्विस में डेफिशिएंसी होती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप केस फाइल कर सकते हो। सो यू कैन फाइल अ केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। However, अभी जब ये बार ऑफ इंडियन लॉयर्स केस आया वर्सेस डीके गांधी, अनदर ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल नोन एज लॉयर्स, तो आप देखिए जब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास लॉयर्स की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द केस में लॉयर्स के फेवर में जजमेंट आता है और उसका बेनिफिट दूसरे प्रोफेशनल्स को भी मिल जाता है। सो बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डीके गांधी के अंदर क्वेश्चन ये आया कि क्या लॉयर्स भी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए लायबल हो सकते हैं कि अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे 2 जज बेंच थी, उन्होंने बोला कि जो लॉयर्स होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, और जो मेन एजेंडा या मेन पर्पस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, it is for protection from unfair trade and business practices only। आप अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अनफेयर ट्रेड और बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे ये सेव करने के लिए बनाया गया है। एंड द इंटेंशन वाज नॉट टू क्वेश्चन और नॉट टू आल्सो आस्क या नॉट टू क्वेश्चन डॉक्टर्स और लॉयर्स व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। सो फाइनली इस पर्टिकुलर केस के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है कि बिकॉज जो ये वाला जजमेंट था, ये 3 जज बेंच था, तो ऑब्वियसली अगर इसको ओवररूल करना है तो यू विल नीड अ 5 जज बेंच। सो इन्होंने रिक्वेस्ट करी है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि आप एक 5 जज बेंच को क्रिएट करिए जो फाइनली इस क्वेश्चन को सेटल डाउन कर देगा कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, क्या वो लायबल होंगे फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। So this was your last article for today from the Indian Express. So we are done with today's news headlines. I hope to see you in the next class where we are probably going to see more such headlines which are important for our exam. Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.